Hello students, this is Kamaljeet Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, DASUA. This is the e-learning platform initiated by Cambridge International School, DASUA during the crisis time of this COVID-19. I hope this platform will help you to study at home very conveniently. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. Let us start revising chapter number 2, that is accounting for partnership firm, that is fundamentals or the basic concepts of the partnership. In this chapter, we will cover the topics like introduction of partnership, preparation of profit and loss appropriation account, preparation of capital accounts of partners, calculation of interest on drawing, calculation of interest on capital, calculation of salary or commission to partners, calculation of interest on partners loan to firm, calculation of past adjustments or calculation of guarantee of profit to a partner. Students, in spite of sole proprietary concern, partnership firm and joint stock companies have own a large number of business concerns. As regard accounting, there are certain peculiarities in the accounts of partnership than those of the sole proprietorship. The main peculiarities regarding to the accounting of partnership firm, for example, relate to distribution of profit, maintenance of capital accounts, etc. In this chapter, we intend to make you understand the same, that is the fundamental of partnership accounting. Now, what is the meaning of partnership? When two or more persons enter into an agreement for setting up a business, running it, and sharing its profit and losses, it is a case of partnership. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, defines the partnership as follows. Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. The persons who have entered into partnership with one another are called individually called partners and the collectively called firm. There are in the in a broad categorization, there are three type of partners: active partners, sleeping partners, or other partners, that is nominal or partners by holding out. Now, what is partnership deed? A partnership deed is formed by an agreement. This agreement may be in oral or writing, though the law does not expressly require that partnership agreement may be in writing. It is desirable to have it in writing so that in case of a dispute, it may be readily referred to a document containing agreement in written between partners in which the rights, duties, and obligations of partners are set out in detail is known as partnership deed. Where there is neither partnership deed nor express agreement, or partnership deed is there but it is silent on any matter, then the relevant provisions of the Indian Partnership Act 1932 would be applicable. In the absence of any written or oral agreement, the under mentioned provisions of Partnership Act shall apply for accounting purposes. The first one is interest on capital. It means कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपस में नहीं किया हुआ है, तो इन दैट केस किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज. इसका मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन को बात यह है कि अगर तो उसके बारे में कोई एग्रीमेंट है तो जैसा एग्रीमेंट है वैसा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गिवन एग्रीमेंट रिलेटेड विद द interest on partner's loan, then interest will be charged at the rate of 6. Interest will be allowed to the partner at the rate of 6% per annum. Or in the absence of any agreement, no partner is entitled for any salary or the commission from a firm. And profit sharing ratio must be equal. And admission of a new partner at the time of absence of partnership deed, if a partner is admitted into the business, the consent of all the partners is required. It means a new partner cannot be admitted unless all the partners agree. Now, these are the essential elements of partnership. The first one is association of two or more persons. दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, एग्रीमेंट होना चाहिए.
एक बिजनेस भी कैरी ऑन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफाइन हो, और एब्सेंस होगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं गिवन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन म्यूचुअल एजेंसी, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे बिजनेस मिलकर पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, या कोई एक चलाएगा बाकी स्लीपिंग होंगे, या कोई एक स्लीपिंग होगा बाकी एक्टिव होंगे। इस तरह से ये कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आप और ज्यादा पढ़ने के लिए अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं। Then the rights of a partner. Every partner has right to take part in the management of the business. Business के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है उसे। Every partner has a right to consult about the affair of the business. हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी पार्टनर को बिजनेस की किसी डीलिंग के बारे में बताई ना, हमें बताना होगा उसे। और एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, हर पार्टनर को अधिकार है, राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी मर्जी से जब चाहे चेक कर सकता है, और चाहे तो उसकी कॉपी भी रख सकता है। और हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बाकियों के साथ प्रॉफिट शेयर जो है वो जरूर करेगा। देन उसके बाद अगर मान लो वही पहले लोन की तरह सेम ट्रीटमेंट, सेम पॉइंट है कि अगर लोन के बारे में एग्रीमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी एक पार्टनर को राइट है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से डिसीजन ले ले, और उसकी वजह से अगर कुछ नुकसान या खर्चा उसको करना पड़ता है तो वो द पार्टनर शैल बी इंडेमनीफाई, मतलब वो उसे रीइंबर्स हो जाएंगे। और अ पार्टनर हैज ए राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर एक पार्टनर चाहता है कि किसी नए पार्टनर को एडमिट ना किया जाए तो उसको पूरा राइट है, वो उसको नए पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है। और एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो सकता है। और अगर एक पार्टनर ने अपने बिजनेस के बिहाफ पे अगर अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च कर दिया है तो वो पैसे उसको रीइंबर्स किए जाएंगे। द पार्टनर गेट इंडेमनिफाइड ऑफ दीज पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म। Then there are certain duties or obligation. फर्स्ट वन इज टू डिवोट टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, हर पार्टनर का की ड्यूटी बनती है, एक ऑब्लिगेशन बनती है कि उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो बिजनेस को डिवोट करना ही होगा, टू कैरी ऑन द बिजनेस डिलीजेंटली एंड विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बिजनेस के बेनिफिट के लिए उसे काम करना होगा, और किसी भी बिजनेस के कंपटीशन की किसी फर्म के साथ एंगेज नहीं होगा। अगर वो उसके साथ करता है तो वहां से जो भी उसे प्रॉफिट होगा उसे बाकी पार्टनर्स के साथ इस फर्म में लाकर शेयर करना होगा। और बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ही यूज होगी, पर्सनल यूज के लिए नहीं होगी। अगर पर्सनल यूज में पार्टनर उसको यूज करता है तो उससे अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस को दिया जाएगा, बट अगर उस पर्सनल यूज में कोई लॉस हो जाता है तो वो अकेला पार्टनर ही बियर करेगा। और हर पार्टनर अपनी अथॉरिटी के विद इन ही एक्ट करेगा, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। और अगर किसी पार्टनर की वजह से कुछ नुकसान बिजनेस को हो गया है तो आने वाले टाइम में वो कोशिश करेगा कि उसको पूरा करने की कोशिश करे, उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगा। Now comes the preparation of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account just एक profit and loss का ही एक्सटेंशन है। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक ही पार्टनर होता है तो हम P&L अकाउंट से उसका प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में बैलेंस शीट में जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर कई पार्टनर्स होंगे, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। इन दैट केस क्या होता है कि आपको एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयर एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड to ascertain the net distributable profit to be credited among the partners in a partnership firm. All these entries related to interest on partners capital, interest on partner drawings, partner salary or commission or amount transferred to reserves fund etc should be recorded in this account. अब आप देखो यहाँ पे ये है बाय प्रॉफिट, जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है, सैलरी या कमीशन देनी है, इन सबको करने के बाद बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में उनकी अग्रीड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और अगर रेशो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होंगे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट के दौरान क्या होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल्स रिमेन इंटैक्ट, कैपिटल्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो फिक्स रहेंगी। सिर्फ अगर कहीं लगता है कि एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो साल में सिर्फ एक बार आप एडिशनल कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने एक्स्ट्रा फंड्स लगा दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं बिजनेस में, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक एडिशनल कैपिटल की एंट्री और एक कैपिटल विड्रॉन की एंट्री जो है, इसके अलावा और कोई एंट्री आप इसमें नहीं करेंगे when the capitals are fixed, and there are two accounts to maintain at the time of fixed capital accounts. One is partners capital account and another is called partners current account. Capital account में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी, और बाकी सारी एंट्रीज लाइक रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, सब कुछ उसमें आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा।
देन द नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि जब कैपिटल्स इज क्वाइट फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें ऐड कर देंगे, जो भी माइनस करना होगा माइनस कर देंगे। मतलब आपको एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल और करंट दो अलग अलग नहीं बनाने, एक ही अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट में लिखा द रीजन इज दैट सो नो सेपरेट करंट अकाउंट्स आर मेंटेन बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सारी की सारी सिर्फ इसी में रिकॉर्ड होंगी। अब बेसिक मेजर डिफरेंस क्या है कि चेंज इन कैपिटल, फिक्स कैपिटल में कैपिटल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती और इसमें फ्लक्चुएटिंग रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। नंबर ऑफ अकाउंट इसमें दो बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या आता है, इसमें कैपिटल फिक्स्ड होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी की सारी जो है कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती बट किस में रिकॉर्ड होती है, करंट अकाउंट में। और इसमें तो सिर्फ एक ही अकाउंट है तो सब कुछ उसी में रिकॉर्ड होगा। और कैन अ कैपिटल अकाउंट शोज अ नेगेटिव बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेंगे बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकते हैं। Now interest on calculation of interest on drawing. Drawings means the amount withdrawn by the partner in cash or in kind for personal purpose, and interest on drawings is to be charged from the partners if the partnership deed provide for the same. मेथड कौन कौन से हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन फॉर्मूला याद रखना है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि टाइम पीरियड जो है उस हिसाब से, अब देखो आपने अगर किसी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मान लो एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स डेट पे विड्रॉ किया, आप मान लो 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करते हो और फिर उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 1 मई को विड्रॉ करते हो, फिर 1 जून को विड्रॉ करते हो, बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो उसका जो यूज करने का टाइम है, यूटिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो हर हर बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप पूरे मान लो सपोज करो आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इस तरह से पूरे साल में 100 रुपए करके पूरे साल 1200 रुपए विड्रॉ किए। अब वो 1200 रुपए विड्रॉ करने के बाद अगर आप उसके ऊपर 1200 के ऊपर 5% सीधा सीधा इंटरेस्ट लगा देते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। 60 रुपीज इंटरेस्ट आपने लगा दिया पूरे साल का। अब जो पहला 100 रुपया था वो तो पूरे 12 महीने यूज किया, सेकंड वाला जो नेक्स्ट 100 रुपीज है वो 11 महीने, उससे नेक्स्ट 100 रुपीज 10 महीने, तो इस तरह से टाइम पीरियड तो कम यूज किया आपने पर इंटरेस्ट पूरे साल का दिया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। उससे आपके पास ये कुछ एक जो कॉमन यूज होते हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं कि अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ की है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6 महीने का लगाओ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 महीने, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर है तो 9 मंथ्स, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर है तो 6 मंथ्स और एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है तो 3 मंथ्स। अब एक बात आप देखो यहाँ पर कि अगर आपने नोटिस किया हो तो मिडल जहां पे भी मिडल आया, देखो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो चाहे मिडल ऑफ ईच ईयर हो कुछ भी हो, तो इंटरेस्ट कितना था 6 मंथ्स, यहाँ पे भी 6 मंथ्स, यहाँ पे भी 6 मंथ्स, यहाँ पे भी 6 मंथ्स। ये आप नोटिस करें। फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कि आपने क्या करना है कि interest on drawing is equal to principal into rate into time upon 100. This is the formula for calculating interest on drawing. अब आता है आपका नेक्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन डिफरेंट ड्राइंग्स और अमाउंट वर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसा विड्रॉ किया, ये होता है प्रोडक्ट मेथड। सो अंडर दिस मेथड प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट विड्रॉन एंड रेलेवेंट पीरियड आर टोटल एंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज। अब इस बात को छोड़ो, आप मेन देखो, इलस्ट्रेशन देखो आप कि इन ए पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है और एक पार्टनर ने डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ये विड्रॉ किया है। इसको हम समझेंगे कैसे करना है और उसके बाद हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है। अब आप देखें इसको, देखो मई 1 को जो पैसा 1000 विड्रॉ किया, क्योंकि वो 11 महीने यूज होगा तो इसको आपने 1000 को 11 से मल्टीप्लाई करके 11000 लिख दिया। अगस्त वाला 2500 रुपए 2500 8 महीने यूज होगा इसलिए 25 इंटू 8 20,000। सितंबर वाला 1000 रुपीज 6 मंथ्स होगा तो 1000 इंटू 6 6 मंथ 6000। जनवरी वाला 3000 2 महीने ही यूज होगा तो 3000 इंटू 2 6000। मार्च 31 वाला तो एंड ऑफ द ईयर ही विड्रॉ किया तो वो तो सिर्फ 0 मंथ्स यूज होगा तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अब ये आ गया आपका 43,000। एक्चुअली में तो आपका ड्राइंग्स अमाउंट जो है, ड्राइंग का अमाउंट तो ये वाला है, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग
पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो 43,000 पे, 43,000 पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, 43,000 इंटू 15% जो कि रेट हमें गिवन है, इंटू 1/12, ये जो हमने टेकिंग 12 एज ए बेस हर बार इस तरह से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू इन्फ्लेट करी है उसको एवरेज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ यू विल गेट योर आंसर. दिस इज द इंटरेस्ट एज पर द प्रोडक्ट मेथड of drawings, of calculating interest on drawings. Interest can also be computing using product method on daily balances. Product is determined by multiplying amount of number of days. Interest is computed total for one day. अलग अलग कैलकुलेट कर लो, जैसे 1000 के ऊपर 11 महीने का कर दो, 2500 रुपए के ऊपर 8 महीने का कर दो, 1000 पे 8, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. उस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये मेथड जो है यूज किया. अब एक बात और इंपॉर्टेंट, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट और फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट, पर अगर क्वेश्चन में डेट ही गिवन नहीं है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ओनली ऑन द होल अमाउंट. 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप लगाएंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोटिस करनी है, वो क्या करनी है कि सबसे पहले पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करना. अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट तो करती है, बट अगर लॉस होते हैं तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करना. इन केस ऑफ प्रॉफिट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ होगा. इन केस ऑफ प्रॉफिट में व्हेन सफिशिएंट प्रॉफिट है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बना 1000, बी का बना 2000, सी का बना 3000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 6000 रुपए. अब बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो है हमारे पास 10,000 रुपए, तो इसका मतलब 10 में से 6,000 इजीली माइनस कर देंगे, आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो इन दैट केस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड. बट अगर वही 6,000 को इंटरेस्ट को पे करने के लिए अगर प्रॉफिट हो जाता है 3,000 या 4,000 कम होता है, तो इट इज ए सिचुएशन ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट. तो अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन देयर इज क्लियर एग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लगाना है, चाहे इसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो जाए, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे. मतलब बाय प्रॉफिट लिखेंगे 5,000 रुपए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 6,000 रुपए, 1,000 रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कंपलसरी लगाना ही लगाना है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे आप कि प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या ये कह लो कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देंगे. नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जो है उसको दिखाएंगे. हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा. अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है. अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जनरली ये शुरू की 4 चीजें यूज होती हैं, दैट इज कैपिटल एट द एंड. कैपिटल एट द एंड में ड्राइंग्स आप जोड़ दें, और उसके बाद कैपिटल विड्रॉन अगर है तो माइनस ऐड कर दें, एडिशनल कैपिटल है तो लेस कर दें, प्रॉफिट है तो वो माइनस कर दें. अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर ये दिया हुआ है इफ एनी, तो इस केस में आप करें. और लॉस, अगर प्रॉफिट हो गया तो लॉस नहीं होगा, लॉस हो गया तो प्रॉफिट नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज एक टाइम पे होगी. तो इस तरह से आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और इस अमाउंट पे, ओपनिंग कैपिटल वाले अमाउंट पे जो है वो आप कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. देन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. सैलरी और कमीशन तभी अलाउ की जाएगी अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिखा है, अगर नहीं लिखा तो नहीं दिया जाएगा. देन सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड नॉट ए चार्ज. चार्ज नहीं है. अगर बिजनेस लॉसेस में होगा तो इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को उसकी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी. तो ये बात क्लियर होगी. अब इसमें मैनेजर कमीशन की तरह ही कमीशन, सैलरी तो सिंपली है जितनी लिखी होगी उसके हिसाब से पे कर देंगे, बट मैनेजर कमीशन के लिए आपको ध्यान से देखना होगा. उसमें जैसे हमने लास्ट ईयर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजर कमीशन की तरह ही अगर इंटरेस्ट सैलरी कमीशन जो है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो सिंपली जितना भी प्रॉफिट होगा उसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर दें. बट अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो रेट ऑफ कमीशन को नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल 5% आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा इंटू 5/105 आप करेंगे. बिफोर में ऐसा नहीं कि माइनस करेंगे, बिफोर में 100 ही रहेगा, आफ्टर वाले में 105 हो जाएगा. देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. पार्टनर लोन के केस में अब सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट है तो वैसा करेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम होगा. और नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करना ही होगा. और इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया जाता बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे या एक्सटेंशन बना के कुछ इस तरह से वर्किंग नोट में आप शो करेंगे. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी जो है वो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट. अब ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, समटाइम्स सम आइटम्स आर लेफ्ट आउट ऑफ कंसीडरेशन. कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, लिखनी भूल गए या गलत लिख दी. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, नहीं किया, नहीं करना था कर दिया. ये तो होगी एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए हम, गलती हो गई हमसे.
कि हमने अलाउ करना था नहीं किया, या करना नहीं था कर दिया, इस तरह से गलती हो गई। या फिर एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में क्या होगा कि अगर 10% लगाना था गलती से 12% लगा दिया, 12% लगाना था गलती से 10% लगा दिया, इस तरह से अगर इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो ऐसे ही सैलरी लगानी थी 5,000 सैलरी लगा दी 500 रुपए, तो इस तरह की कोई गलती हो गई। तो ये जो पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं ये कुछ ट्रीटमेंट जो गलत हो गई हैं हमसे उनको ठीक करने के लिए भी हमने क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो वो जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उनके हिसाब से हम करेंगे कि किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। Then a calculation of guarantee of minimum profit to partners. Sometimes a partner may be guaranteed a minimum amount of his share in profit. Such a partner to whom such guarantee has been provided is called guaranteed partners. The partner who has given such guarantee are called guaranteeing partners. Such minimum amount is called guaranteed amount. One or some of all the partners in an existing profit sharing ratio or in some other agreed ratio may provide such guarantee. If in an year the actual share of the profit of a guaranteed partner is less than the guaranteed amount, then the deficiency is borne by the guaranteeing partners in their agreed ratio. अब क्या है कि प्रॉफिट में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनर को गारंटी देनी पड़ती है, वो कई बार डिप्रेस हो जाता है कि उसमें उसने इतना पैसा इस बिजनेस में लगाया, उसको इतना गेन नहीं हो रहा। इन दैट केस रिमेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग में से कुछ पार्टनर, जैसे ए बी सी है, सी को लग रहा है कि पैसा फालतू में इतना ज्यादा लगा दिया, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इन केस में ए और बी दोनों गारंटी दे सकते हैं, या अकेला ए ही गारंटी देता है किसी भी हाल में तुम्हारा प्रॉफिट इतने पैसे से कम नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो एक्चुअल में अगर प्रॉफिट उतना हो गया तो फिर तो गारंटी वाला कोई क्लॉज नहीं लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमने सी को गारंटी दी कि 10,000 रुपए तुम्हें मिनिमम मिलेंगे मिलेंगे, अब एक्चुअल में उसको 12,000 मिल गए या 15,000 मिल गए, तब कोई कैलकुलेशन होगी। बट अगर 10 से कम हो गए, 10 से कम हो गए, 8 हो गए, 6 हो गए, इन दैट केस क्या होगा, ए और बी दोनों मिलकर या ए या बी दोनों में से कोई एक, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे ही वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे और अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालकर सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा कि कौन बियर करेगा तो रिमेनिंग दोनों, फॉर एग्जांपल ए बी सी थे, सी गारंटेड पार्टनर था और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कौन बियर करेगा, तो ए और बी दोनों गारंटी का जो अमाउंट है डेफिशिएंसी का वो बियर करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना, एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करो, फिर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो और डेफिशिएंसी को गारंटिंग पार्टनर जो है वो गारंटिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसे हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कॉन्सेप्ट्स पढ़े, चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और एक आध एग्जांपल भी मैंने आपको करके दिखाया, जैसे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आज के लेसन में जो जो कॉन्सेप्ट बताए गए मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन तक हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे। In the next session, we will continue our next topic. Till then, dear students, to stop the COVID 19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.